Good morning, children. Today I am starting here chapter number 7, probability distributions. Uh, why I am taking here this chapter, probability distributions, for the video? Because students in a 12th standard calculus parts are as a first chapter as a here differentiation. Second chapter as a application of that, applications of differentiation. Then third as a integration. It is a indefinite integral. तो इसी को ही हम क्या बोल रहे हैं, इंटीग्रेशन. इट इज अ indefinite. Right? Fourth one is a definite integral. Then fifth one is a application, or I think that definite integral and applications both are combined there. I have to look in a book. Look there. Here third one is a integration, that is a indefinite integral. Fourth one is a definite integral. Fifth one is a application of a definite integral. Sixth one is a differential equations. Seventh one is a probability distribution. Which I am starting now. And eighth one is a binomial distribution. Okay, in short I am writing here. Look here. In a Maths 2, it is the list of the chapters. Right? In a calculus, first 6 chapters are there, and these chapters are here connected to each other. If you know the differentiation, then you can find out the applications of differentiation. Then if you know the integration, then you can find out definite integral as well as the application of definite integral. तो यहाँ इंटीग्रेशन के लिए मुझे डिफरेंशिएशन आना भी नेसेसरी है, because both are the reverse process to each other. After that, if we can find derivatives and integration both, then we can find out the differential equation, or we can solve the differential equation, otherwise not. Means these 6 chapters are here connected to each other. Therefore, in between of these 6 chapters, we cannot disturb the sequence. Without disturbing the sequence, I have to start this chapter probability distribution. Here weightage for that 5 marks, and weightage of chapter number 8 binomial distribution also 5 marks. Right? तो यहाँ देखो बच्चों, ये जो 6 चैप्टर्स है ये कैलकुलस के हैं, एंड लास्ट 2 चैप्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्टैटिस्टिक्स. तो इसी का इसके साथ इतना कनेक्शन नहीं है, इसीलिए मैं ये चैप्टर फॉर वीडियो के लिए मैं आपको ये सेंड मीन्स स्टार्ट कर रही है, क्योंकि आपको ये कुछ भी नहीं आ रहा है तो मैं डायरेक्टली नहीं स्टार्ट कर सकती है. Therefore I am selecting this chapter number 7. अभी इसी में भी मुझे इंटीग्रेशन लगता है, बट थोड़ा सा नेक्स्ट पार्ट के लिए लगेगा, तो वो तो आप मीन्स इन 2020-21 के सिलेबस में रिड्यूस किया था. तो
अब देखेंगे कि हमको क्या मीन्स एजुकेशन डिपार्टमेंट से सर्कुलर क्या आता है. ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई विल टेक that section which is including their integration in a probability distribution. राइट तो मैं ये चैप्टर आपका स्टार्ट कर रही है. बहुत ही इजी चैप्टर है. इट इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टैटिस्टिक्स. तो थोड़ा सा यहाँ ध्यान देकर करना है. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन? यू स्टडीड प्रोबेबिलिटी इन अ 10th स्टैंडर्ड, 11th स्टैंडर्ड आल्सो, राइट. 10th स्टैंडर्ड में तो हमको सिर्फ सिंपल था. सिंपल मीन्स क्या था? उसी में सिर्फ हाउ टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? मीनिंग क्या है प्रोबेबिलिटी का? प्रोबेबिलिटी मीन्स हम उसी को क्या बोल सकते हैं? पॉसिबिलिटी. प्रोबेबिलिटी मीन्स पॉसिबिलिटी इज देयर. यस और नो, यस नो, इस तरह से आंसर है. एक यस तो होगा या तो नो तो होगा, राइट. या तो 50-50% चांसेस होते हैं इसी में, राइट. तो ये प्रोबेबिलिटी मीन्स, अभी देखो 10th में आपने जो भी लर्न किया है वहाँ एक सैम्पल स्पेस होगा, राइट. हाउ टू फाइंड आउट अ सैम्पल स्पेस? इट इज डिनोटेड बाय यस. तो यहाँ देखो आपने 10th स्टैंडर्ड में प्रोबेबिलिटी का एग्जाम्पल मीन्स, सिंपल एग्जाम्पल आई एम टेकिंग हियर. 1 कॉइन इज टॉस्ड. एक कॉइन हमने टॉस किया है. दैट इज अ एक्सपेरिमेंट. ये क्या है? हमारा एक्सपेरिमेंट है. तो एक्सपेरिमेंट अगर हम करते हैं तो इसी में चांसेस क्या है? तो यहाँ एक कॉइन टॉस किया, इट इज अ वन ऑफ द कॉइन. ये टॉस किया तो इसी में हमको क्या मिलेगा? आइदर यू विल गेट टेल और हेड. तो हमारा सैंपल स्पेस क्या हो सकता है? एक कॉइन टॉस किया तो टी और या तो एच, इस तरह से होगा. अगर 2 कॉइन हमने टॉस किए हैं, 2 कॉइन टॉस किए हैं तो हमको क्या मिलेगा? देखो ये 2 कॉइन है, 2 कॉइन हमने टॉस किए हैं. तो देखो यहाँ टी रहेगा, यहाँ भी टी हो सकता है, यहाँ टी रहेगा, यहाँ एच हो सकता है, यहाँ यच रहेगा, यहाँ टी हो सकता है, यहाँ यच रहेगा तो यहाँ यच रहेगा, राइट. इस तरह से पॉसिबिलिटी होते हैं. मीन्स अगर हमने 2 कॉइन टॉस किए, यहाँ एक कॉइन टॉस किया तो यहाँ हमको क्या मिल रहा है? एक तो टेल मिलेगा या तो हेड मिलेगा. मीन्स 1 कॉइन टॉस तो 2 रेस टू, एक तो टेल मिलेगा या तो हेड मिलेगा. 2 ही पॉसिबिलिटी है. तो 2 रेस टू n. n मीन्स एक कॉइन है, राइट. तो 2 रेस टू 1 मीन्स क्या आ जाएंगे? पॉसिबिलिटी 2 रहेंगे. अभी 2 कॉइन टॉस किए हैं हमने, राइट. 2 कॉइन टॉस किए हैं तो हमारे सैंपल स्पेस कितने होंगे? 2 कॉइन टॉस किए हैं तो सैंपल स्पेस कितने रहेंगे? तो ये 2 रेस टू 2 मीन्स कितना रहेगा? 4 रहेगा. 3 हमने कॉइन टॉस किए हैं तो हमारे सैंपल स्पेस कितने रहेंगे? 8 रहेगा. यस, इस तरह से रहेगा. तो ये हमारी क्या है? सैंपल स्पेस. तो सैंपल स्पेस तो ये हमने 10th में लर्न किया है. तो देख लो यहाँ ये जो प्रोबेबिलिटी होती है उसी की वैल्यू जो भी होती है 0 to 1 इसी के बीच में ही होती है. नॉट ग्रेटर देन 1 और नॉट लेस देन 0. अगर आपके एग्जाम्पल में आपको एग्जाम्पल दिया है और उसी में आंसर आपका ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो आपने कुछ तो एग्जाम्पल सॉल्व करते वक्त क्या किया है? मिस्टेक किया है. या तो निगेटिव आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है मीन्स निगेटिव आ रहा है, तो भी आपका आंसर रॉन्ग है. समझ में आ रहा है? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ प्रोबेबिलिटी का. जो डाइस होता है, एक डाई मीन्स इस तरह से जो डाई होता है, राइट. तो ये यहाँ इसी पर 6 नंबर होते हैं, राइट. तो यहाँ भी ये 6 रहते हैं.
यहाँ भी 6, इस तरह से। तो एक डाई हमने ये किया, तो उसी को मीन्स हमारे आउटकम, पॉसिबल आउटकम्स कितने हो गए? 6। तो ये हमारा सैंपल स्पेस क्या रहेगा? 1 2 3 4 5 6। यहाँ 1 होता, तो ये इस तरह से हमारे क्या होते हैं? आउटकम्स होते हैं। मीन्स सैंपल स्पेस में क्या आ जाएंगे? 6 आ जाएंगे। अगर दो डाइस है तो 2 डाइस रहेगा तो क्या रहेगा? ये हमारे आउटकम्स कितने हैं? 6 हैं। और 2 रहेंगे डाइस तो क्या होगा? 6:2 मीन्स कितने आ जाएंगे? 36 रहेगा। तो ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं हम? देखो, ये इस तरह से आ जाएगा 1 1, राइट? 2 है, 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, ये फर्स्ट इसी का। अभी यहाँ दूसरा 2 1 2 2 2 3 2 4 2 6, इस तरह से आ जाएंगे। यहाँ थर्ड लाइन में 3 1 3 2 3 4, इस तरह से अप टू 6 1 6 2, इस तरह से आ जाएगा। मीन्स अगर 2 डाइस हमने ये किए हैं, 2 डाइस क्या किए हैं? हमने रोल किए हैं, तो सैंपल स्पेस जो भी रहेगा S इज इक्वल टू, ये किस तरह से रहेगा? इसी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? हमारी 36 आ जाएगी। एक डाई के लिए रोल किया तो 6 रहते हैं आउटकम्स, 2 किए तो 6:2, दैट इज 36। मीन्स 1 1 1 2। अभी देख लो, मैंने पहला नंबर एज इट इज रखा है, दूसरा मैं क्या कर रही है? मूव कर रही है। इसी तरह से यहाँ ये 1 6 रहेगा, राइट? यहाँ 2 1 2 2 कॉमा, अभी ये एज इट इज यहाँ 2 6। इसी तरह से यहाँ लास्ट में 6 1 6 2 कॉमा हियर सो एंड यहाँ 6 6। तो ये टोटली हमारे कितने होते हैं? सैंपल स्पेस N of S इज इक्वल टू 36, राइट? तो आपको मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट सम ऑफ फर्स्ट नंबर, या तो ये जो भी सम है 4 या ग्रेटर देन 4, इस तरह से आना चाहिए। तो वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? इस तरह से क्वेश्चन आपने 10th स्टैंडर्ड में लर्न किए हैं, राइट? दैट इज अ एक्स। तो ये एक्स मीन्स क्या होता है? कैपिटल एक्स मीन्स क्या है? इट इज अ रैंडम वेरिएबल होता है, या तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम उसी को बोल सकते हैं। उसी को हम क्या बोल सकते हैं? रैंडम एक्सपेरिमेंट। अभी 11th स्टैंडर्ड में जो भी हमने प्रोबेबिलिटी लर्न किया है वो थोड़ा सा अलग था। आई थिंक दैट मैथ्स 1 में आपने स्टडी किया है वो। आई नॉट टॉट दैट। सुनीता मिस ने आपको प्रोबेबिलिटी का लिया होगा 11th स्टैंडर्ड में, थोड़ा सा वो भी आपने ऑब्जर्व करना है। तो इस ईयर में हमको ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या फाइंड आउट करना है? तो अकॉर्डिंग टू आवर सिलेबस, जो भी सिलेबस है हमारा, उसी में हमको किस तरह से फाइंड आउट करना है, कौन से पॉइंट है। नाउ आई एम गिविंग हियर। फर्स्ट इज अ random variable. Then second is a types of random variables. Third one is a probability of probability distribution of random variables. अभी
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, तो यहाँ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल जो भी है वो क्या क्या है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एक है, डिस्क्रीट और सेकंड वन इज, देखो यहाँ डिस्क्रीट एक है और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, दो टाइप के होते हैं, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या होता है? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मीन्स, देखो एक फैमिली मीन्स फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फैमिलीज कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन अ गिवन सोसाइटी। तो अभी सोसाइटी में जो भी फैमिलीज है उसी में कितने बच्चे हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। तो ये जो होता है ये डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, बच्चे हमको ये करना है, तो वो तो फ्रैक्शन में नहीं आ जाएंगे, therefore it is said to be as a discrete random variable। और continuous random variable means क्या होता है? अभी continuous random variable means suppose for example height of a tree, height of a tree। अभी height of a tree, अभी हमने फ्रंट साइड से देखा, सपोज हाइट ऑफ द ट्री इज 7.2 फीट, राइट। अभी ये एग्जैक्ट तो है नहीं है, यहाँ 7.25 समथिंग भी हो सकता है, या तो 7.267 इस तरह से भी हो सकता है। मीन्स ये क्या है? फ्रैक्शन में है, इट इज इन अ फ्रैक्शन। तो ये क्या हो गया? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जाम्पल है। उसी तरह से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में फ्रैक्शन में नहीं होता है, दैट इज इन अ इंटीजर पार्ट। वो क्या होता है? इंटीजर के इसी में ही होता है। तो कंटिन्यूअस एंड डिस्क्रीट, इसी में थोड़ा सा डिफरेंस समझ में ले लो। आफ्टर दैट, अभी ये फोर्थ पॉइंट, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। तो इसी को हम शॉर्ट में पीएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीएमएफ, प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ये क्या होता है? जैसे जैसा हम थ्योरी पार्ट स्टार्ट करेंगे ये आपको मैं एक्सप्लेन करेंगी। देन नेक्स्ट वन इज, फिफ्थ वन इज, अभी इसी से रिलेटेड ही मैं एक पॉइंट ले रही है पहले ही, एक्सपेक्टेड वैल्यूज, एक्सपेक्टेड वैल्यूज एंड वेरिएंस। ये एक्सपेक्टेड वैल्यू मीन्स क्या होता है? इट इज अ ई ऑफ एक्स एंड वेरिएंस इट इज ये सिग्मा स्क्वायर होता है। या तो ये बाद में हम थोड़ा सा देखेंगे ये जो भी है, तो पहले हम थ्योरी पार्ट क्या क्या है वो देख लेंगे। तो इतने ही आपके पॉइंट्स है कि जो कि हमको चैप्टर नंबर 7 में लर्न करना है, और ऑन द बेसिस ऑफ दिस पॉइंट देयर इज अ वन ऑफ द एक्सरसाइज 7.1 देयर एंड 7.2 एक दूसरा एक्सरसाइज है जो कि अभी के मीन्स इन दिस ईयर, कौन सा एकेडमिक ईयर 2020-21 जो था उसी में 7.1 ही कंसिडर किया था। मीन्स इतने ही पॉइंट थे, 7.2 उसी में कंसिडर नहीं किया था। तो तभी हमने बच्चों को सिर्फ 7.1 तक ही टीच किया था, 7.2 नहीं किया था। अभी इस ईयर में क्या आ जाएगा आई डोंट नो, जब सर्कुलर आ जाएगा तब पता चलेगा, बट वी हैव टू नाउ स्टडी दैट, राइट। तो ये इतने पॉइंट हैं, और दूसरे जो पॉइंट है ऑन द बेसिस ऑफ दैट
विच इज द एक्सरसाइज 7.2 दैर। तो उसी के लिए हमारा जो भी पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, दैट इज हियर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। देखो ये क्या है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है। तो ये पीडीएफ के इसी से जाना जाता है। तो पीडीएफ मीन्स हम जो पीडीएफ इसी में यूज करते हैं वो नहीं, टेक्नोलॉजी के लिए वो। तो ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन है, राइट। और लास्ट वन इज नहीं, इतने ही इसी पर, ये इतना जो पॉइंट है उसी के लिए सिर्फ 7.2 एक्सरसाइज है। और इसी में हम इसी को 7th पॉइंट लिखेंगे। और 6th पॉइंट जो भी है आई एम राइटिंग हियर। 6th पॉइंट इज क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ये एक पॉइंट है। सिर्फ ये पॉइंट जो है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, इसी पर हमारा एक्सरसाइज 7.2 है। तो ये हम थोड़ा सा बाद में देखेंगे। ये सभी पॉइंट अप टू 6 पॉइंट ये जो है हम स्टार्ट करेंगे अभी, राइट। नाउ अभी ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या है, ये सभी आपकी बुक में थोड़ा सा बहुत मीन्स क्या बोलते हैं उसी को, बहुत सारा दिया है लेकिन कुछ भी अंडरस्टैंड नहीं होता है। तो मैं आपको शॉर्ट में बताएगी यहाँ ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन मीन्स क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हियर इज अ रैंडम वेरिएबल। ये रैंडम वेरिएबल मीन्स क्या होता है, तो रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यूड फंक्शन है। ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है। एंड इट इज डिफाइंड ऑन द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। जो भी हम रैंडम एक्सपेरिमेंट करते हैं उस सैंपल स्पेस का क्या है, ये रियल वैल्यूड फंक्शन है ये। और वी हैव टू से दैट इसी का जो भी डोमेन है, देखो ये मैंने आपको रियल वैल्यूड फंक्शन है ये बोला है। रैंडम वेरिएबल ये क्या है, आई एम राइटिंग हियर रैंडम वेरिएबल। तो ये रैंडम वेरिएबल मीन्स इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। ये क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन x फ्रॉम यस टू r। ये यस मीन्स क्या है, ये हमारा डोमेन है, आपने लर्न किया है। देखो ये इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन। या फ्रॉम a टू b इट इज अ फंक्शन, राइट। या फ्रॉम a टू b, तो ये सेट a जो होता है इसी को हम क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। और ये b जो होता है ये क्या होता है, कोडोमेन, राइट। तो यहाँ ये जो भी है it is a random variable is a real valued function means x from s to r। तो ये s means क्या है, सैम्पल स्पेस, एंड r means क्या है, उसी में जो भी हमारे कोडोमेन है ये क्या है, रियल वैल्यू है उसी की, ये फंक्शन की रियल वैल्यू है। तो यहाँ डोमेन ऑफ रैंडम वेरिएबल इज द, ये सैंपल स्पेस है एंड हम क्या कर रहे हैं, रैंडमली एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। यस इज द डोमेन ऑफ अ रैंडम वेरिएबल इज द सैंपल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। Here its codomain is a set of real numbers। उसी का कोडोमेन क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स होता है। अभी देखो हमने दो कॉइन क्या किए हैं,
टॉस किए हैं. हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 2 कॉइन. मैं आपको यहाँ डेफिनेशन लिख कर देती हूँ. डेफिनेशन ऑफ दैट रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन, राइट? द डोमेन ऑफ a random variable is the sample space of a random experiment. Random experiment. तो मैं ये शॉर्ट में लिख रही है EXPT. While its codomain is, तो उसी का कोडोमेन क्या होता है? रियल नंबर होता है. इट्स कोडोमेन इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स. सेट ऑफ रियल numbers. For example, 2 coins are tossed. हमने क्या किया है? 2 coins टॉस किए हैं. तो यहाँ देन सैंपल स्पेस S इज इक्वल टू, देखो सैंपल स्पेस हमारा क्या आ जाएगा? HH, HT, TH, TT, राइट? ये हमारा सैंपल स्पेस है. मीन्स N ऑफ S विच इज इक्वल टू 4 है. N ऑफ S हमारे क्या है? 4 है. अभी X मुझे इस तरह से लेना है. अभी इसी में देखो ये जो सैंपल स्पेस है, एक H रहने वाले कितने हैं? 1H, या तो 1T रहने वाले 1 है, यहाँ भी 1 है, राइट? 2H रहने वाले यहाँ कितने हैं? एक 1 है. और 2T रहने वाले भी कितने हैं? 1 है, राइट? अभी मैं यहाँ x इस तरह से सिलेक्ट कर रही है. x इज इक्वल टू, तो ये हमारा क्या है? x. दैट इज अ x मीन्स हमने सिलेक्ट किया है. लेट x इज इक्वल टू गेटिंग मेंबर ऑफ tails in a toss. X is equal to getting member of tails in a toss. अभी यहाँ getting member of tails in a toss, तो यहाँ टेल है क्या? नहीं. तो यहाँ क्या रहेगा? ये 0 रहेगा. यहाँ कितना है? 1. यहाँ कितना है? 1. यहाँ t कितने हैं? 2 है. इज इट राइट? यहाँ t कितने हैं? 2 है. तो ये जो भी है हमारा आइदर 0 या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा. तो पॉसिबिलिटी कितनी है? 0 रहेगा या तो 1 रहेगा या तो 2 रहेगा. मीन्स यहाँ ये जो भी HH है इसी में t कितने हैं? 0 है. t ही क्यों कर रहे हैं हमने? क्योंकि हमने ये एक्सपेरिमेंट सिलेक्ट किया है, उसी के लिए x इज इक्वल टू गेटिंग मेंबर ऑफ टेल्स इन अ टॉस. तो ये फर्स्ट इसी में कितने हैं? HH है, तो इसी में टेल नहीं है. देयरफॉर यहाँ क्या रहेगा? प्रोबेबिलिटी इसी का 0. यहाँ कितना है? 1. यहाँ कितना है? 1. यहाँ कितने हैं? 2 है. मीन्स आइदर गेटिंग 0, 1 और 2. मीन्स अभी जो भी हमने ये सैंपल स्पेस लिया है उसी में देखो ये HH, HT, TH और ये क्या है? TT, राइट? तो यहाँ हमारा कोडोमेन में क्या आ रहा है? 0, 1. देखो यहाँ HH में टेल कितना है? 0. यहाँ HT में कितना है? 1 है, राइट? TH में भी कितना है? 1 है. और TT में हमारे 2 है. मीन्स ये यहाँ 0,
ये दोनों भी क्या रहेंगे, 1 के लिए रहेंगे, इज इट राइट? और ये 2 मीन्स आइदर गेटिंग हेयर 0, 1 और 2। समझ में आ गया? तो ये x हमने जो सिलेक्ट किया है, गेटिंग मेंबर ऑफ टेल्स इन अ टॉस। तो यहाँ अभी हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लुक हियर। देन x ऑफ HH, देखो हम f फ्रॉम A टू B लिखते हैं, राइट? तो यहाँ a मीन्स क्या होता है, x होता है, और ये क्या होता है, y। तो हम क्या लिखते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू y, राइट? फंक्शन डिफाइन करते वक्त। तो उसी तरह से देखो ये सैंपल स्पेस में ये हमारा क्या हो गया, a। तो x मीन्स ये x फंक्शन है, इट इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन। तो x ऑफ HH मीन्स ये जो सैंपल स्पेस है उसी में x यहाँ क्या है, HH है, इज इक्वल टू ये कितना है, 0। देन x ऑफ HT it is a 1, x of TH it also 1, and x of TT it is a 2, right? तो यहाँ नो टेल है, ये हमने सिलेक्ट किया है उसी तरह से, 1 टेल here also 1 tail, here also 2 tail, right? अभी ये हमको क्या मिला, आइदर 0, 1 और 2, राइट? देखो अभी हमको यहाँ प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हमको जो हम पहले 10th में फॉर्मूला यूज करते थे, P ऑफ A इज इक्वल टू क्या होता था, A मीन्स एक हमारा इवेंट होता था, राइट? तो उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करते थे। तो यहाँ N ऑफ A अपॉन N ऑफ S, ये हमारा 10th का फॉर्मूला है। तो यहाँ हमको डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। अब ये किस तरह से होगा, ये हमारा 10th का फॉर्मूला है। तो यहाँ ये किस तरह से फाइंड होगा, तो देख लो, देखो यहाँ मैं x लिख रही है, ये हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल है, इट इज सेड टू बी एज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। तो ये थोड़ा सा हम बाद में ले लेंगे। तो x जो भी हमको मिलेगा, ये x क्या है, इट इज अ रैंडम वेरिएबल, इट इज अ रैंडम वेरिएबल। तो x ये जो भी मिलेगा हमको क्या मिलेगा, 0, 1, 2, इस तरह से फाइंड आउट करेंगे। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का थोड़ा सा बाद में ले लेंगे। आ गए समझ में ये, राइट? तो ये पहले x किस तरह से फाइंड आउट करना है, देख लो। ये हमारा जो भी मिलेगा ये क्या है, रियल नंबर्स है, 0, 1, 2, दीज आर द रियल नंबर्स, राइट? तो ये रैंडम वेरिएबल का आपको एक्सप्लेन किया है। नाउ टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। अभी रैंडम वेरिएबल के टाइप कौन से हैं? टाइप्स ऑफ random variable. All right, children, I have look what's the time.